Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Anchal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, in our previous session, we have started with the 5th unit of our GK, okay, and we have already done one of the chapter as well. And today we are going to continue with the same unit, that is unit number 5. Okay, so the next topic is epic sagas, that is given at page number 26. So class, kindly open your books at page number 26, that is epic sagas. Okay, I'll just write on the topic on the board, that is epic sagas. This is the topic, okay, given at page number 26, given at page number 26, epic sagas. So what is the meaning of epic sagas? Epic sagas का meaning क्या है? Epic sagas का meaning है बेटा, there are the some stories not in the form of the story only, in the form of the poem, in the form of the movies, novels एंड मैनी अदर थिंग्स. ठीक है, तो कई चीज़ें होती है जो पोइम की फॉर्म में, शायरी की फॉर्म में एंड नॉवेल्स की फॉर्म में, कई हैं जो हमारे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं. ओके, सो दैट हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन लाइफ, जो लोगों के लिए बहुत ही इट हैज़ अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट एंड एज वेल एज इट इज़ वेरी पॉपुलर बिटवीन द पीपल. लोगों के बीच में वो बहुत पॉपुलर भी है. पीपल आर लविंग इट. Okay, so the people love to learn about them, people love to read it. Okay, so कुछ heroic deeds हैं जो कि कुछ अलग अलग पुराने ज़माने में कुछ लोगों की हैं, कुछ हमारे great leaders की हैं, अच्छे great राजा को हम क्या kings की हैं, queens की भी हैं. So they are some epic deeds. Okay, so they are here in this topic. We are going to talk about some of the Indian as well as from the other countries, some epic and the heroic deeds. Okay, and we will came to know about it, little bit of them. Okay, जैसे कि मैं बात करूँ, रानी झांसी की रानी थी जो हमारी मणिकर्णिका. ओके, जो कि जिनको बाद में झांसी की रानी बोला गया. दैट वाज अ ग्रेट एपिक डीड. ओके, यू कैन लर्न अबाउट हर ओके फ्रॉम द बुक्स दैट इज रिटन बिफोर हर. उनके फेवर में जो उनके लिए जो बुक्स लिखी गई हैं उसमें आप जाके उनके बारे में जान सकते हो. राजा हरीशचंद्र, जिसके बारे में आपको पता होगा कि ही वॉज द मोस्ट लॉयल किंग. ओके, एंड ही इज़ वेरी ट्रू टू हिज वर्ड्स. तो वो जो भी कुछ कहते थे एंड ही इज़ वेरी ट्रू टू हिज वर्ड्स. सो ऑल दीज थिंग्स वर ऑल अबाउट द वेरियस एपिक पर्सनैलिटीज. दे हैव सेड ग्रेट वर्ड्स वर सेंट बाय देम. उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कही थी. ओके, सो ऑल दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन. So starting with the top heading, that is the term epic refers to the long narrative poems, movies or the novels describing heroic deeds. Most epic are the legendary tales about the glories and the deeds of the heroes from the mythology and the history. Name the authors of these of the following epics. So एपिक का मतलब होता है कि ऐसी कुछ पोएम, कुछ मूवीज़, कुछ नॉवेल्स, कुछ स्टोरीज जो कि कुछ हीरोइक डीड्स हैं, किसी इंसान द्वारा की गई. एक हीरोइक मीन्स ऐसा इंसान जो कि ऐसी चीज़ करे जो कि बाकी सबके लिए बहुत अच्छी हो, जिसने दूसरों को बारे में सोचते हुए अपने ऊपर मुसीबत ली. सो जैसा मूवी में कहते हैं ना, हीरो है कि वो मतलब सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है. सो दीज आर द हीरोइक डीड्स. सो दीज हीरोइक डीड्स मीन वो काम जो एक हीरो से जो हीरो एक काम करता है उसको हम बोलते हैं हीरोइक deeds. So in this topic, in this chapter, we are going to talk about the various heroic deeds done by the various legendary personalities, leaders and kings, queens. Okay, तो ये कुछ some of they are related to the glories और कुछ है mythology से related हैं. So what we have to do is we have to write the name of the authors जिन्होंने ये सारी heroic deeds लिखी हैं. So we have to write we have to write the name of the authors, those who have written all these heroic deeds. Okay, so the page number is 26 and the name of the chapter is epic sagas. Okay, so starting with the first one, that is the ancient Greek
epic, the Iliad, not Ilhad, it is Iliad. The ancient Greek epic, the Iliad, is the story of Achilles, of his anger and the determination, and how he slew the Trojan hero Hector. ओके सो ये जो जिस स्टोरी की हम बात कर रहे हैं, दिस इज अ एपिक स्टोरी ऑफ इटली, सॉरी ग्रीक. ओके ये ग्रीक एक आपने कंट्री का नाम सुना, ग्रीक. ओके सो ये ग्रीक की एक एपिक स्टोरी है जो जिसका नाम है इलियाद. ओके एंड दिस स्टोरी इज अबाउट एचलीज. सो दिस इज द नेम ऑफ द हीरो, हु इज द हीरो इन द मूवी, इन द स्टोरी, एंड हिज नेम इज एचलीज. ओके एंड ये स्टोरी है उसके एंगर की, उसके गुस्से की, उसकी डिटर्मिनेशन मीन्स हिज विल पावर टू डू समथिंग, कुछ काम करने के लिए उसकी जो इच्छा शक्ति है, ओके कुछ करने की जो उसकी जिद है, दैट इज हिज डिटर्मिनेशन. कुछ मतलब अपने आप को किसी भी काम को करने में इतना इन्वॉल्व कर लेना कि मुझे ये काम करना ही करना है, दिस इज माई ड्यूटी एंड आई एम गोइंग टू डू इट. सो दिस इज द डिटर्मिनेशन. एंड इफ यू विल डू एनीथिंग विद द डिटर्मिनेशन, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन. ओके सो एंड हाउ ही स्लू द ट्रोजन हीरो हेक्टर, और कैसे उन्होंने एक जो ट्रोजन एक जगह है वहाँ के उस कंट्री के जो राजा थे हेक्टर, उनको भगाया था. सो दिस स्टोरी इज अबाउट द Achilles, द वॉर बिटवीन द Achilles एंड द ट्रोजन हीरो हेक्टर. हाउ दिस Achilles हैज, उसने अपनी टर्मिनेशन से जो ट्रोजन के राजा थे हेक्टर, उनको भगाया था. ओके सो हु इज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी? द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी इज होमर. सो द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी इज Homer. That is the first one, Homer. So this is the name of the author, that is Homer. And you know there is something very unique about this Homer also. जो ये Homer है, इनके बारे में भी कुछ यूनिक बातें हैं जो कि आपकी बुक में टिटबिट्स में दी हुई है. So we will discuss it, that one. Homer is believed to have been a blind poet wandering from place to place reciting poems. Some scholars believe that the epics were not written by any one person but are a compilation of the stories by different people over a period of time. ये माना जाता है जो ये होमर जो ऑथर हैं, एक्चुअली ही इज़ नॉट अ ऑथर, इज़ अ पोइट. ओके सो दिस स्टोरी अबाउट दिस इलियाद, तो ये इलियाद है, ये एक पोइट्री फॉर्म में एक स्टोरी लिखी गई है कि कैसे आचलीस का राजा अपने गुस्से और अपने डिटर्मिनेशन से उसने ट्रोजन के जो हीरो थे हेक्टर थे उनको हरा दिया था. ओके एंड दिस होमर द पोइट ऑफ दिस स्टोरी, ओके द पोइट ऑफ दिस पोइम, उन्होंने अपनी इस पोइम में एक स्टोरी मेंशन की है. और इस स्टोरी में दैट ही इट इज़ बिलीव दैट होमर वॉज अ ब्लाइंड पर्सन. ओके वो एक ब्लाइंड थे, वो एक अंधे पोइट थे. ओके so he was taken as a known by the people as a blind person. okay वो अंधे थे and he just keep on moving from place to place reciting poems. तो वो अलग अलग पोइम्स गाते हुए एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे. बट some of the people they believe that it is true that वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए ये पोइम्स गाते थे और लोगों को इसके बारे में बताते थे. एंड लेटर ऑन इट वॉज रिटन गिवन इन द शेप ऑफ अ पोइम. बट सम ऑफ द पीपल दे बिलीव दैट कि नहीं, ये सब उन्होंने नहीं लिखा है. ओके ये सिर्फ उन्होंने अकेले ने नहीं लिखा है, बल्कि ये बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे पोइट हैं उन्होंने मिलकर इसकी रचना की, उन्होंने लिखा है. व्हेन दे वर ट्रैवलिंग, तो वो उन्होंने बहुत मतलब पूरे उस टाइम पीरियड में जितने भी पोइट है उन सबकी मिलके ये रचना है. सो इट इज नॉट द वर्क ऑफ अ सिंगल पर्सन, इट इज द वर्क ऑफ द वेरियस पीपल और द वेरियस पोइट ऑफ दैट टाइम. Okay, it is being believed. So what is the truth that I don't know. Okay, so what is the truth? Okay, but it is this truth that Homer was a blind poet. He was blind. वो अंधे थे जो होमर थे. Okay, second one, the Ramayan. Okay, the Ramayan के बारे में I don't think anybody wants some kind of explanation, but this is my duty, I have to tell you. So most of you must be knowing more than me even. So the Ramayan is an Indian epic written in Sanskrit. It tells the story of Ram, Sita and the Lakshman of the Ayodhya, which includes Rama's victory over Ravan and their lives thereafter. So who is the writer, who is the author of this story? इस जो रामायण है वो किसने लिखी थी? रामायण was written by वाल्मीकि जी, जिनको हम वाल्मीकि जी बोलते हैं. वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी. So you know, I'll just write the answer and then I'm going to explain what is Ramayan, a little bit about the Ramayan. So Ramayan was written by Valmiki.
Valmiki. So Ramayana was written by Valmiki. So Ramayana एक story है, mythological story. Okay, this is from our own country India. Okay, and in this story is about the king of Ayodhya, Dashrath, and his four sons. Okay, and he's having three wives as well. So Ram was one of the eldest son. Okay, and he is believed that he was the wisest man of the country, of the world. माना जाता था कि वो दुनिया के सबसे wisest man थे. Okay, and he just adore his parents. Okay, he only believes in the words of his parents only. Okay, but later on, due to some circumstances, his जो इनकी stepmother थी, she sent him along with his wife to for a sub उन्होंने उनको एक वनवास भेज दिया था. ठीक है, एंड एग्जाइल जिसमें बोला था, एग्जाइल में भेज दिया था. एंड ही हैव टू केम बैक आफ्टर 14 years. Okay, but when he was residing in that exile period, so at that time the Ravan, the another king of Lanka, he just kidnapped his wife Sita, and then after that there was a huge war between the Ram and the Ravan, and later on the Ram ने victory की थी. He just won over the Ravan and took back his wife Sita. Okay, so this story is about this भगवान राम है, उनकी जो वाइफ थी सीता जी, and plus there is some of this friends Hanuman and Sugriv and other ones. and इस स्टोरी में लिखा हुआ है कि वो कैसे अपने उन्होंने लाइफ जी थी. ओके, एंड यू नो दिस स्टोरी दैट रामायण वॉज रिटन बिफोर द बर्थ ऑफ राम. क्योंकि जो रामायण था, जो वाल्मीकि जी ने राम जी के पैदा होने से पहले ही लिख दी थी कि दिस ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी हैपन इन दिस लाइफ. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उनकी लाइफ में होंगी. सो दिस ऑल दीज थिंग्स वॉज ऑलरेडी रिटन बाय द वाल्मीकि जी बिफोर इज द बर्थ ऑफ लॉर्ड राम. ओके, एंड अनदर थिंग that this whole Ramayana was written in Sanskrit. तो ओरिजिनली जो रामायण एंड महाभारत एज वेल वॉज रिटन इन संस्कृत. जो लिखी किसमें गई थी? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी. ठीक है, जो कि वाल्मीकि जी ने लिखी थी. बट लेटर ऑन इट वॉज इसको दोबारा से लिखा गया था इन द अदर लैंग्वेजेस एज वेल. तो इट वॉज इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस. तो पीपल हु लव टू रीड द रामायण, तो उनके लिए, उनके आसानी के लिए उनको और भी लैंग्वेजेस में लिखा गया था. ओके, बट ओरिजिनली इट वॉज रिटन इन द संस्कृत ओनली, एंड इट इज़ वन ऑफ द एपिक स्टोरीज ऑफ अवर कंट्री. ओके, एंड एक स्टोरी किसके बारे में है? लॉर्ड राम, सीता एंड लक्ष्मण, एंड हिज विक्ट्री ओवर रावण, एंड their life, how they deal with the various conditions. Okay, उन्होंने अपनी लाइफ में जो वेरियस अलग अलग कंडीशंस है इसमें कैसे डील किया. सो ऑल दीज पॉइंट्स वर रिटन इन दिस. ओके, चलिए, नाउ मूविंग टू द थर्ड वन, दैट इज Orlando Furioso. Orlando Furioso is an Italian epic about the war between the Christians and the Pangas. Okay, so next is the Orlando Furioso. This is the story. This is an Italian epic. जो Furioso, ये names होते हैं बेटा. These are the Italian names. Okay, so you have heard about. तो ये जो ऐसे names होते हैं Italian names होते हैं. So this Orlando Furioso, this is the epic of Italy. So ये Italian epic है, Italian story है, heroic deed है. ओके, एंड ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी इज अबाउट द वॉर बिटवीन, ये जो दो लोगों के बीच की वॉर है, दैट वाज बिटवीन क्रिश्चियंस एंड द पंगास. इन दोनों के बीच की वॉर है, उन दोनों के बीच की लड़ाई के बारे में इसमें दिया गया है. ओके, एंड व्हाट आर द पागास? पागास आर द पीपल हु वर अगेंस्ट द रिलीजन. तो जो रिलीजन के अगेंस्ट जो लोग होते हैं उनको पागास बोला जाता है. ओके, सो दिस स्टोरी इज अबाउट इटालियन एपिक एंड इट इज रिटन in this it is written between the story about the war between the Christians, जो क्रिश्चियन लोग थे और जो पागास थे. पागास मीन्स जो पीपल हु वर अगेंस्ट द रिलीजन, उनके बीच की जो लड़ाई है उसकी स्टोरी इसमें लिखी गई है. एंड द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी इज Ariosto. So this is the name of the author of the story, that is Ariosto. 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 He was the author of the story. Moving to the fourth one, the Aeneid, a Latin epic poem written from the about 30 to the 19 BC by this Roman poet, incorporates the various legends
of Aeneas and makes him the founder of the Roman greatness. So next जिसकी हम बात कर रहे हैं, this is a Latin poem. तो ये Latin poem है and the name of this poem is Aeneid. Okay, this is the name of the poem, that is Aeneid, जो कि लिखी गई है 30 to 19 BC के बीच की एक स्टोरी, रिटन स्टोरी पोइम फॉर्म में लिखी गई है. ओके, और ये एक रोम के एक पोएट थे, उन्होंने लिखी है. ओके, सो वी हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस पोएट. ओके, तो ये जो है, ये स्टोरी है, ये एक लेजेंड है एनीज. उनके बारे में है कि उन्होंने कैसे रोम को ढूंढा था और उन्होंने रोम की ग्रेटनेस के बारे में उन्होंने लिखा. सो ऑल दिस स्टोरीज अबाउट दिस एनीज. सॉरी, हु इज द ऑथर ऑफ this Aeneas is a poem written by a great poet, that is Virgil. So the name of the poet is Virgil, Vergil. Virgil is the poet of this story, this poem. Okay, and in this he has it is written that how the Rome was found, तो रोम कैसे ढूंढा गया था. ओके, एंड लेटर ऑन द वेरियस जो उस पर राजा हुए उनके बारे में, कि मतलब पूरी जो रोम की ग्रेटनेस है, जो रोम की इतिहास है, ऑल दीज थिंग्स आर रिटन इन दिस पोएम. So this is the story about the everything is about the Rome, and this was written. The poet of this poem Aeneas is Virgil. Vergil. Virgil. That is Virgil. Virgil. That is Virgil. Okay. चलिए, moving next to the fifth one. Okay, you can just pause the video here for writing these answers. Chaliye, now I'm moving to the fifth one. Moving to the fifth. Okay, now we will move to the fifth one. Okay, the fifth one is Mahabharata is an epic and the longest poem ever written. It narrates the stories of the great Bharat dynasty. महाभारत जो कि है, आप सबको पता है, महाभारत एंड द रामायण, यही दो हमारी जो इंडिया की सबसे एपिक स्टोरीज हैं. सो इन द महाभारत इज द स्टोरी अबाउट द पांडव एंड द कौरव्स एंड द वॉर बिटवीन, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था उनके बीच में, उसके बारे में ये स्टोरी है. ओके, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट पोएम, एंड यू नो दिस ऑल द महाभारत है, ये पूरी एक पोएम के फॉर्म में लिखी गई है. एंड दिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पोएम एंड द पोएट इज वेद व्यास. तो वेद व्यास ने ये महाभारत लिखी है, जिसमें कि कौरव और पांडव के बीच में जो युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र का युद्ध, कुरुक्षेत्र जो जगह है, ओके, दैट इज इन नियर द पंजाब. तो ये उनके बीच में जो युद्ध हुआ था, उनके बीच में जो लड़ाई हुई थी, जो वॉर हुई थी, उसके बारे में है कि क्या दैट द कौरव जो थे 100 भाई थे एंड पांडव जो था 5 ओनली. ओके, सो उनके बीच में लड़ाई हुई थी. देवर कजन्स. ओके, तो कजन्स थे, बट अपनी for the sake of their mother and for the sake of their motherland, they fought the war. They have a great war between the cousins, and later on the Kaurav थे वो जो हार गए थे, and जो पांडव थे वो जीत गए थे under the guidance of Lord Krishna. Okay, so this is the story of, this is the longest ever poem written. So who is the poet of this story? So the poet of this story is Ved Vyas. That is Ved Vyas. W-E-D V-Y-A-S. Ved Vyas is the poet of this Mahabharata, and this is the longest ever poem written ever. Okay, next is sixth one. The Divine Comedy is a 14th century epic. It is divided into 3 major parts: Inferno, Purgatorio, and Paradiso. In the epic, the poet is guided by the Virgil from hell to heaven. ओके, सो ये डिवाइन कॉमेडी, ये एक 14th सेंचुरी की एक एपिक स्टोरी है. ओके, एंड इसमें इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज इन्फर्नो, पुरगैटोरियो एंड द पैराडाइसो. सो दिस इज ओके. एंड ये वर्जिल ने कि स्वर्ग से नर्क तक का जो रास्ता है उसके बारे में है. दिस इज अ लिटिल बिट मिथोलॉजिकल एंड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड. I mean, ठीक है, so I just trying to find out, but it is little bit complicated. So this is the Divine Comedy. Just you have to keep the name of the story and the author. So who is the author of the Divine Comedy? The author of the Divine Comedy is
Dante Alighieri. Okay, so then Dante Alighieri is the author of the Divine Comedy. Okay, so who is the author of the Divine Comedy? That is Dante Alighieri. Dante, D-A-N-T-E, Dante, L-E-A-L-I-G-H-I-E-R-I, G-H-I-E, Dante Alighieri is the author of the Divine Comedy. Next is so let's move to the next page, that is page number 27. Okay, so now I'm going to, this is also the part of this topic only, epic sagas. Iska next page number is 27. So there are some other questions about some of the other epic sagas, तो कुछ उन्हीं से related हैं. तो ये कुछ religious books. So in this page number 27 we are going to talk about some of the religious books. कुछ religious books हैं, उनके बारे में बात करेंगे and उसके बारे में पूछा जाएगा. So some of the topics that will be related to it. Starting with the first one, it is the name of the scriptural work whose theme is Krishna's response to Arjun's concern about killing the members of his family in ensuring Mahabharata. Okay, so जिस book की बात हम कर रहे हैं, so you have to give the answer and you have to tell the answer in one word only. तो ये जिस book में इसके बारे में लिखा हुआ है, इस book में ये एक This is a religious book है. This is a religious book and in this book it is written about it. जो कृष्ण है, भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन ने उनको जब अर्जुन was denying to kill his cousin brothers, जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने ही cousins को मारने से deny करे that he is not going to kill any of his cousin brothers, that how Lord Krishna made him कि no, you have to kill them if you want the safety of your motherland, okay, of your family, so you have to kill your cousins. So उन्होंने कैसे उनको तैयार किया था. So ये जो चीज़ है, this story, this is written in one of the religious book. So what is the name of this book? So that's the name of this book is Bhagavad Gita. So the name of this book is Bhagavad Gita. Okay, so I'll just write down the name of the book is Bhagavad Gita. बोलते हैं Bhagavad गीता. ओके, इसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे कि दैट बिफोर थिंकिंग अबाउट हिज फैमिली ही हैज़ टू थिंक अबाउट हिज मदरलैंड. ओके, सेकेंड, विच गॉड इज अर्जुन्स फादर इन द महाभारत. जो महाभारत में अर्जुन के जो फादर थे वो कौन से भगवान थे. सो विच गॉड इज द फादर ऑफ अर्जुन इन द महाभारत. महाभारत में अर्जुन के फादर कौन थे. दैट वॉज इंद्र. ओके, सो दैट वॉज इंद्र. सो इंद्र वॉज द फादर ऑफ अर्जुन, ओके, इन महाभारत. ओके, दैट वॉज इंद्र, INDRA. थर्ड वन, Who originally wrote रामायण. रामायण ओरिजिनली किसने लिखी थी. सो रामायण वॉज ओरिजिनली रिटन बाय वाल्मीकि, जो कि हमने थोड़ी देर पहले भी था. एंड दिस रामायण वॉज रिटन इन संस्कृत. ओरिजिनली रामायण किस में लिखी गई थी. संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी. एंड इट वॉज रिटन बिफोर द बर्थ ऑफ लॉर्ड राम. तो भगवान राम के पैदा होने से पहले ही उनकी जो ये लाइफ स्टोरी है दैट वॉज ऑलरेडी रिटन बाय वाल्मीकि जी. Okay, and who originally wrote the Ramayana? So Valmiki wrote the Ramayana. So that is Valmiki. So you have to answer only in one word. We are going to write as Valmiki. Okay. Fourth is Ashwagosha wrote an account of the life and the teaching of Buddha called. तो अश्वघोष थे, उन्होंने भगवान बुद्ध की लाइफ के ऊपर और उनकी टीचिंग्स के ऊपर एक बुक लिखी थी. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बुक. दैट इज बुद्ध करिता. बुद्ध करिता. करिता मीन्स कार्य. जो उन्होंने जो काम किए हैं, बुद्ध भगवान ने जो काम किए हैं, ऑल हिज टीचिंग्स, ऑल हिज प्रीचिंग्स, ऑल हिज वर्क्स, all his life, everything about his life, that where he was born,
how he was brought up and how he's left his family, and how he became how he started following the this Buddha culture, and then later on he converted the Ashok, उन्होंने जो अशोक थे उनको भी जो बौद्ध धर्म का जो फॉलोअर बना दिया था. So all these things are written on in this book. Okay, that was written by Ashwaghosh. So he has written a whole story about the Lord Buddha and his preachings and the teachings and all his works. Okay, so the what is the name of this book? So the name of this book is Buddha Karita. Karita means कार्य को जो काम किए हैं. Okay, so this Ashwaghosh is the author. He is the writer of this book, that is Buddha Karita. BUDDHA Buddha Karita. CRITA, that is Buddha Karita. This was written by Ashwaghosh. Okay. Next is fifth. Which piece of his wife's jewelry does Kovalan, the hero in the Tamil epic Shilpadikaram, try to sell to an evil goldsmith, for which he is accused of being a thief? तो एक तमिल की एक एपिक स्टोरी है जिसका नाम है शिल्पादिकरम. सो दिस इज द नेम ऑफ दैट एपिक स्टोरी दैट इज फ्रॉम तमिलनाडु. ओके, एंड इसमें एक जो कोवलन, जो कि उस स्टोरी के जो हीरो हैं, हिज नेम इज कोवलन, उन्होंने अपनी वाइफ की एक ज्वेलरी जो कि उन्होंने बेची थी, वो एक गोल्ड स्मिथ के पास, एक सोनार के पास बेचने गए थे. बट जो सोनार था, ही वॉज द एविल वन, वो बहुत ही खराब था. वो चाहता था कि वो उसकी ज्वेलरी भी ले ले, बट ही डोंट वांट टू गिवन इवन अ सिंगल पेनी टू दैट कोवलन. तो वो कोवलन को, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया था कि इसने ये इसकी वाइफ की नहीं है, बल्कि इसने ये जो गहना है ये किसी से चुराया है, एंड ही इज ट्राइंग टू सेल इट टू मी. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ज्वेलरी पीस? तो वो ज्वेलरी पीस जो उसके पास वो बेचने आए थे, उसका नाम क्या था? दैट वॉज हिज एंकलेट, जिसको कि हम बोलते हैं पायल. दैट वर हर एंकलेट. ओके, दैट इज द फिफ्थ वन, दैट इज एंकलेट. ANKLET, दैट वॉज एंकलेट, जो उनकी पायल थी. ओके, वो अपनी वाइफ की पायल बेचने आए थे. Sixth one, in the epic Manimekkalai, the heroine of the same name goes to Vanchi to perform penance. Vanchi served as the capital of which great dynasty? तो मणिमेकलाई एक जगह जो उसकी हीरोइन थी, जो कि वांची में जाती है अपने आप को एक सज़ा देने के लिए. पेनेंस मीन्स खुद को सज़ा देना. ओके, ड्यू टू सम हर्ड वर्क, उनके नाम की वजह से उनको सज़ा मिली थी. ओके, तो वो वांची एक जगह पे जाती है जहाँ पे उनको अपने आप को खुद सजा देनी होती है. ओके, सो जो वांची है वो किस ग्रेट डायनेस्टी की कैपिटल है? सो वांची इज द कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी? दैट इज वांची इज द कैपिटल ऑफ सेरा. सो नेम ऑफ द प्लेस इज सेरा. सो वांची इज द कैपिटल ऑफ सेरा, दैट इज CERA. सो वांची इज द कैपिटल ऑफ सेरा. सेवेंथ वन, the legends of the ancestors of which avatar of Vishnu are narrated in the Kalidas Raghuvansham. ओके, सो जो भगवान विष्णु के जो अवतार थे बहुत सारे, उसमें से कौन से अवतार को जो कालिदास ने रघुवंशम नाम की जो किताब लिखी है, किस अवतार के बारे में लिखी है? सो जो कालिदास ने जो बुक लिखी है रघुवंशम, उसमें भगवान विष्णु के कौन से अवतार की बात की है? दैट वॉज राम. ओके, राम जी के रघुवंशम इज राम. Eighth one, in which language were the Ramayana and the Mahabharata first written? रामायण और जो महाभारत है सबसे पहले किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? सो रामायण एंड महाभारत वर ओरिजिनली रोट इन संस्कृत, बट लेटर ऑन इट वॉज written in some other languages as well. So but originally it was written in Sanskrit only. So the answer is Sanskrit. SANSKRIT. So Ramayana and Mahabharata were originally wrote in Sanskrit. Okay. So these are the answers from 5th to 8. You can just pause it here and write down the solution. Now moving next to the 9th one. The 9th one is, in the Ramayana, who cuts off Surpanakha nose? रामायण में
शूर्पणखा की जो नाक थी वो किसने काटी थी? सो शूर्पणखा's नोज वॉज कट बाय लक्ष्मण, तो लक्ष्मण ने शूर्पणखा की जो नाक काटी थी. सो इन रामायण हु कट्स ऑफ शूर्पणखा's नोज? दैट वॉज लक्ष्मण, दैट वॉज लक्ष्मण. जिसके कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ था राम जी और रावण में. लास्ट इज इन द महाभारत हु वॉज करण मदर, जो करण थी उनकी मम्मी का नाम क्या था महाभारत में? सो दैट वॉज कुंती. तो कुंती के जो 5 पांडव थे, इवन द करण वॉज वन ऑफ हिज सन. ओके, एंड हु वॉज द फादर ऑफ, सो हु इज द मदर ऑफ करण? दैट वॉज कुंती.